સ્ટુડન્ટ્સ, ગુડ મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ્સ. આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ આપણે આગળ. tick-borne flavivirus. Flavivirus, that is the family or the genus of the tick-borne virus. What is called as the tick-borne disease? That is a vector which is transmitted a virulent vector to the human body. That is called as what? A tick-borne disease. That is a vector transmitted the disease. जो हमने बात किया था कि टिक कहाँ से वो बनती है, टिक कैसी होती है, वो सब आपको पता है जो आगे हमने देखा था फिगर में. That is called as what? A tick-borne flavivirus. Tick-borne encephalitis has two types. That is a Russian spring summer encephalitis, and the second one is a Powsum virus. That is a two type of the species are observed into the tick-borne flavivirus. Flavin, that is a family of the tick-borne virus name. And the second form is the tick-borne hemorrhagic fever. There are two severity causes are occurred into tick-borne encephalitis that have two types. That is the Russian spring summer encephalitis. That is a species stem student, which is the serotypes of the encephalitis virus of the tick-borne. And the Powsum virus, that is one of the another species of the tick-borne encephalitis virus. The next one is the tick-borne hemorrhagic fever, which is caused the hemorrhagic fever into the body. That is two types, Kayasui forest fever, that is occur into the only India. See students, Kayasui forest disease, that is only present into the India. And the B is the Osmia hemorrhagic fever, that is occur into the Japanese type of the fever, जो जापान में उसकी स्पीसीज आइडेंटिफाइड की गई थी. नेक्स्ट वन कायजुनर फॉरेस्ट डिसीज रिप्रेजेंट करता है KFD से. तो फेब्राइल डिसीज एसोसिएटेड with hemorrhage that appeared in the Kayasur forest of the Karnataka. That is appear into the Karnataka forest. The species are identified into the Karnataka forest into the 1957 as a fatal epizootic affecting on monkeys. What is called as the epizootic means कि affective, zootic means कि जो भी zygotic form absorbed हो रहा है into the body from to the virulentic appearance, and epi means कि starting means कि the bone formation, जहाँ से वो जो bone form हो रहा है उनका, जहाँ से blood cells create हो रहे हैं, जहाँ से डेवलप हो रहे हैं, तो वहाँ वो साइट को क्या बोलते हैं? एपी. एंड द जोएटिक मींस की जो प्रेजेंटेटिव फॉर्म वर्ड्स बनता है, मींस की डबलिंग फॉर्म वहां से क्रिएट होता है. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? स्टेम सेल फॉर्म. तो वहां से जो मंकी में देखा गया था वो उसमें से फिर ह्यूमन बीइंग में ट्रांसमिट है. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? एपिजोटिक अफेक्टिंग मंकी along with a severe post-treating illness in some of the villages into the area. First of all, कहाँ पे उनका एरिया दिखा गया है कि जो सराउंडिंग जो पेरीफेरी कर्नाटका का फॉरेस्ट के पेरीफेरी जो रेसिडेंशियल फॉर्म है, तो वहां से मंकीज को कैरी करते हुए वहां से कैरियर के द्वारा ह्यूमन बीइंग में वहां के नियर बाय विलेज के पीपल को अफेक्टेड हुआ. Antigenicity related with the RSCC virus. Birds and the small mammals are believed to be the reservoirs of the virus. Means what are the another reservoirs of the Kayasui forest disease? There is the birds and the small mammals are the believed to be the reservoirs of the virus. Virus is transmitted by the bite of the tick. Okay, कहाँ से वायरस ट्रांसमिट हो? जो टिक्स के कारण जो बाइट करते हैं उसके कारण वो उसमें से ट्रांसमिट हुआ. टिक्स मीन्स कि जो टिक्स है उसमें पहले वायरस अफेक्ट हुआ और वो मंकी में गया और मंकी में से फिर ह्यूमन बीइंग में कैरियर के द्वारा ट्रांसमिट हुआ. Ticks may also act as a reservoir host as a virus is transmitted transferably in them. Monkey act as an amplifier type of the host. What is called as the amplifier type of the host means कि जो doubling capacity को increase करता है, ट्रांसफर कर रहा है वो, तो that is amplifier portion. अगर monkey में से नहीं होता तो वो reservoirs monkey द्वारा आ रहा है. So that is the reason behind monkey is the amplificator of the host. Host means कि human body. Next one, clinical features. What are the clinical features? The incubation period varies the 3 to 7 means की infection जब हमारी बॉडी में वायरस इन्वेड होता है तो उसकी एक्टिविटी कब स्टार्ट होती है? 3 to 7 days के बाद, तो जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है. Patient develops a fever of the sudden onset with a headache, vomiting, conjunctivitis, myalgia and the severe prostration. Means कि जो पेशेंट में डेवलप हो रहा है सडनली ऑनसेट, हेडेक, वॉमिटिंग, कंजक्टिविटा मीन्स की टीयर्स, secretions tears into the eye. Myalgia means कि जो भी muscles fatigue हो रहे हैं, and the severe prostrations means कि जो prostrations form हो रहा है उसमें severity conditions observed होंगी. Some patients also developed hemorrhage into the skin, mucosa, alimentary canal, chest cavity and also the viscera. That is develop into the hemorrhagic form में क्या होगा कि जो hemorrhagic cause हो रहा है उसके कारण स्किन का रिलेटेड जो भी डिफॉर्मिटीज है वो स्टार्ट होगी. म्यूकोसा एलिमेंट्री कैनाल उसमें भी क्रैकर्स होंगे, उसमें इंफेक्शन होगा. चेस्ट कैविटी में ऑब्वियसली चेस्ट कैविटी दैट इज अ प्लूरल कैविटी. जो इन्फेक्शन के रीजन बिहाइंड क्या होगा? प्लूरल कैविटी ऑलवेज फिल विद द
इन्फेक्टेड फ्लूइड, जो हमें एस्पिरेट ही करना पड़ता है, वो हमें बाहर निकालना, ऐसा नहीं बोलना है, एस्पिरेट करना है, दैट इज कॉल्ड एज वाटर इन्फेक्टेड फ्लूइड, वी हैव टू एस्पिरेट ओवर दैट कैविटी. एंड आल्सो द viscera. Expiratory may occur into the some cases. Cases is the fatality is about the 5%. कितने हैं? 5% fatality is there. How to be controlled? तो first of all prevent कैसे करना है? तो control of the ticks. The population at the risk should be vaccinated with the shield of the KFB vaccine. Means कि जो भी ticks जो ट्रांसमिट हो रही है, तो उसके रीजन बिहाइंड क्या हो रहा है कि वैक्सीनेटेड फॉर्म में बनाना है और तो टिक्स को कंट्रोल करना है कि जो ट्रांसमिट करने में कैपेबल है. पर्सनल प्रोटेक्शन कौन कौन सा है? तो प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल बाय एडिक्वेट क्लोथिंग एंड इंसेक्ट ऑफ द रिपेलेंट. मींस कि पर्सनल प्रोटेक्शन हाइजीनिस्ट क्या डेवलप करना है कि जो भी कैरियर कर रहे हैं फॉर्माइट्स के द्वारा ट्रांसमिट हो रहा है. यू नो दैट कि स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शन आपने देखा था, तो वो फॉर्माइट्स द्वारा सबसे ज्यादा ट्रांसमिट हो रहा है. मींस कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट, और आपने स्टेफिलोकोकस जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन मेडिकल बैक्टीरियोलॉजी आपने स्टडी किया होगा, तो उसमें फर्स्ट है स्टेफिलोकोकस स्पीसीज और स्ट्रेप्टोकोकल स्पीसीज. तो स्टेप्टो इज द रिप्रेजेंट फॉर हाउ टू बी ट्रांसमिटेड. तो हॉस्पिटल रिलेटेड में जितने भी फॉर्माइट्स है, जितने भी कैरियर है, फॉर्माइट्स का मीनिंग क्या है कि जो हैंड ग्लोव्स है, हैंड कर्चीफ है, बेडशीट है, तो वो सभी फॉर्माइट्स बोलते हैं, उसके द्वारा जो ट्रांसमिट करते हैं. तो उसी तरह से हमें जो एडिक्यूट है हमारे क्लोथ्स है, सभी को हमें क्लीन करना जरूरी है. Then Binoviridin is a family of the arthropod bone or the rodent bone spherical envelope RNA virus is that is a another virus that is the envelope of the virus. आपको पता ही है कि RNA वायरस कितने फॉर्म में डबल हो रहा है और किस किस तरह से वो ऑब्जर्व हो रहा है. तो enveloped RNA virus. Benign virus are responsible for a number of the febrile disease in the humans and other vertebrate. मीन्स की क्या हो रहा है उसमें कि बायनल वायरस रिस्पॉन्सिबल अ नंबर ऑफ द फेब्राइल डिसीज. जो भी फेब्राइल टाइप ऑफ द डिसीज है, कोलाजेनिया रिलेटेड डिसीज है, उसके लिए वो वर्टिब्रेट कर रहा है, मीन्स की ट्रांसमिट कर रहा है. दे हैव either a rodent host or an arthropod vector as a vertebrate type of the host. मीन्स की वो क्या कर रहा है स्टूडेंट कि ज्यादातर रोडेंट होस्ट, आपको पता ही है कि रोडेंट होस्ट मीन्स की क्या है, जो एनिमल ट्रांसमिटेड फॉर्म है, जैसे कि रैट है, माइस है, हैमस्टर है, टिक्स है, वो सभी रोडेंट को बोलते हैं. एंड एंट्रोपोड वेक्टर एज अ वर्टिब्रेट होस्ट, दैट इज एंट्रोपोड वेक्टर, दैट इज अ मॉस्किटो, जो हम अभी पूरा पढ़ रहे हैं. एंट्रोपोड मींस के मॉस्किटोस ट्रांसमिटेड डिसीज, उसके अलग अलग टाइप ऑफ द जीनस एंड उसकी स्पीसीज है जो वर्टिब्रेट होस्ट स्पेसिफिक होस्ट के द्वारा ट्रांसमिट हो रहा है. ह्यूमन डिसीज कॉज्ड बाय द वायरस एंड द फैमिली ऑफ द बियार्डिया फैमिली. तो जो हम बियोना वायरस जो है उनका फैमिली बैकग्राउंड देखते हैं तो क्या क्या होता है. तो बियोना वेयर, that is the genus name or the group name or the tribe name. What are the virus? The Bionna vera causes the fever, vector mosquito and the distribution of Africa. सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिला? अफ्रीका में. Wamba means कि Wamba, that is the fever of the rest, mosquitoes and the distribution into the Africa. California, तो California encephalitis, the mosquitoes is the vector and the नॉर्थ. सभी क्या है स्टूडेंट्स? मॉस्किटोज ट्रांसमिटेड डिसीज है जो नॉर्थ अमेरिका में दिखा है. सिम्बू, उसका वायरस का नेम क्या है? सुनी. एंड द डिसीज कॉज फॉर द फीवर. वेक्टर कौन सा है? मॉस्किटोज. एंड द डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? अफ्रीका, एशिया, अफ्रीका में. caused by virus of the family Giardia virus, means की two types है, that is the genus and the group name. Phlebotomus fever and the virus name is the Ciacin and the Naples. This is causes for the fever. Vector sand flies, दोनों के दोनों सैंड फ्लाइज है. जो कंट्री में सैंड्स का डेजर्ट देखने को मिलता है वहीं से ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यूरोप, अफ्रीका एंड द एशिया. अनदर वन है स्टूडेंट्स के जो नेपल्स फीवर सैंड भी कहाँ से ट्रांसमिट हो रही है? सैंड फ्लाइज, यूरोप और एशियन अफ्रीका में देखने को मिला है. रिफ्ट वैली फीवर कॉजेस द फीवर, एंसेफेलाइटिस, हेमरेजिक फीवर एंड द ब्लाइंडनेस. बहुत टफ है उसका. रिफ्ट वैली फीवर का एक्सपोजर सबसे ज्यादा है. वेक्टर कौन सा है? तो मॉस्किटो. डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से देखने को मिला है? अफ्रीका में से. Genus, another type of the Crimean Congo and the Nibro ship disease. Crimean Congo, that is the virus of the Crimean Congo hemorrhagic fever, that is caused as one nairovirus. This is a family name. This is caused as a hemorrhagic fever. Who is transmitted? The affected region is the ticks and the distribution is the Asian Africa. नायरोबिक शिप डिसीज. नायरोबिक शिप डिसीज में होगा कि जो शिप है उसमें टिक्स के द्वारा ट्रांसमिशन होगा. नायरोबिक शिप डिसीज कॉज्ड द फीवर एंड द बैक्टीरिया इज अ टिक्स एंड द डिस्ट्रीब्यूशन इज अफ्रीकन एशिया. हंटा वायरस, दैट इज द लास्ट एक्सपोजर स्टूडेंट्स. हंटा वायरस जो रिसर्वियर्स फॉर्म किया है हंटा वायरस का, HFPS, हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम्स, HFRS,
हेंटेन वायरस का नाम क्या है? हेंटेन. एंड द रिसर्वियर्स इज द रोडेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज द एशिया. Pumala virus, that is HPS, and the HFRS means ki Hanta virus pulmonary syndrome causes for the reservoir host rodent. Distribution किसमें है? एशिया में. Seol, that is a virus name. Hante के 3 species है Hanta virus का, और उसका first name है Hunten, Puamla and the Seol. That is this is the virus name. Disease name is the HFRS, which caused respiratory pulmonary disease. सिंड्रोम कोस कर रहा है, रोडेंट है, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है? एशियन, यूरोपियन. जीनस एंड द ग्रुप. वायरस जीनस, जीनस नेम कौन कौन सी है? तो उसकी हंटा वायरस की बेंगलुरु फीवर रैश. वेक्टर कौन है? अभी तक पता नहीं चला है कि उसका वेक्टर क्या है. अफ्रीका. बंजा, दैट इज अ फीवर एंड एन्सेफेलाइटिस. वेक्टर क्या है? अफ्रीका, यूरोप एंड एशिया. स्कूल, Cascori, Neando, Tetangia, and the Vinori, that is a group of the Hanta virus, that are the virus name of the Hanta. And the genus अभी तक identified नहीं हुआ, signed हुआ ही नहीं है कि उसका genus कौन सा है, because अभी unidentified है, new virulitic form है. और disease क्या कर रहा है? फीवर, सभी में फीवर है. और वेनारिया स्पीसीज में क्या देखने को मिला है? हेमरेजिक फीवर. और वेक्टर क्या है उसका? टिक है. डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? मिडल ईस्ट, एशिया. That is the targeted form which are responsible to the वायरलाइटिक अफिशिएंसी फॉर्म, कि जो भी साइंसम सिम्टम्स है, कौन कौन से जगह पे हंटा वायरस क्या कर रहा है, हेमरेजिक फीवर का कहाँ पे कॉज कर रहा है, हेमरेज कहाँ का सबसे ज्यादा कॉज कर रहा है, वीरेमिया स्प्रेड कहाँ से हो रही है, सभी एक सिस्टमेटिक डायग्राम यहाँ पे दिया गया है कि एंट्री कहाँ से लिया गया, कहाँ पे वो लोकलाइज्ड हुआ, कैसे वो स्प्रेड हुआ, कहाँ से वो एग्जिट हुआ, राइट. तो वो सब अफेक्टेड पार्ट्स दिए गए सिर्फ आपको समझने के लिए ही स्टूडेंट्स से मैंने लिया है. ये थोड़ा डिटेल में इसीलिए बिकॉज अभी कोरोना 19 का जो भी पोजीशन बन रहा है उसको समझने के लिए मैंने थोड़ा ये वायरस बहुत डिटेल में पढ़ाया है. इसका रीजन ये नहीं है कि हमें सिर्फ पढ़ के चले जाना है, आपको अप्लाई करना है, यूटिलाइज करना है. See, that is the signs of the Cheerman Congo hemorrhagic fever. See, there is affect necrosis are occurred here. Blackening convert हो गया क्योंकि यहाँ के जितने भी मस्कुलर एक्टिविटिकल फॉर्म है, कोलाजन फेब्रिल डिसऑर्डर है, तो उसके रीजन भी है मल्टीपल हेमरेजिक कंडीशंस आर ऑब्जर्व्ड हियर. तो मल्टीपल हेमरेजिक कंडीशन से क्या होगा कि जो भी टिश्यू और जो भी सेल्स है वहाँ के वो नेक्रोस्ड हो जाएंगे और फिर रिकवरी पोजीशन में पार्ट नहीं करेंगे. दैट इज द रीजन बिहाइंड इट विल बी कन्वर्ट इनटू द ब्लैकनिंग कलर. Laboratory diagnosis of the abroviruses. So specimen as a blood, CSF, brain tissue may be used for the isolation of the virus. Specimen का isolation करने के क्या होगा? blood है, cerebrospinal fluid, brainial tissue used for the isolation of the virus. First virus isolation, the suckling mice. Specimens are inoculated intracerebrally into the suckling mice. The animal develops fetal encephalitis, most sensitive method for isolation of the abrovirus. जो sucking of the माइस की, जो माइस को सक करने के जब तो माउस जो भी माइस है वो रिसर्वियर्स बनते हैं और फिर वो ह्यूमन के कांटेक्ट में आके ह्यूमन में से स्प्रेड करते हैं. टिश्यू कल्चर टेक्निक. तो व्हाट आर द टिश्यू कल्चर आर अप्लाई हियर? तो वेरा इज द BHK21 एंड मॉस्किटो सेल लाइन व्हिच आर सेल लाइन आर इनोकुलेटेड विद द स्पेसिमेन. जो भी स्पेसिमेन दैट इज अ स्पेशल टिश्यू कल्चर जो यूज किया गया है वो सेल है कि जो भी रिसर्वियर्स जो भी एनिमल में इनोकुलेट करने के बाद जो सेल लाइन फर्स्ट डेवलपेशन हुई है वायरस के लेकर उसको बोलते हैं क्या? BHK21 वायरस सेल लाइन इनोकुलेटेड विद द स्पेसिमेन. ग्रोथ ऑफ द वायरस इन सेल कल्चर इज आइडेंटिफाइड इम्यूनोफ्लोरेसेंस. किस तरह से आइडेंटिफाइड किया जा सकता है? इम्यूनोफ्लोरेसेंस, हीम एग्लूटिनेशन इनहिबिशन, CFT, ELISA और न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट. सबको पता है आपको कि ELISA और न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. The second one is the serological testing, usually used as a diagnosis for the abrovirus infection. जो भी type of antibody एंटीजेंस है, जो भी टाइप ऑफ वायरस है उसके स्पेसिफिक स्पीसीज को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम सेरोलॉजिकल टेस्टिंग को अप्लाई करेंगे. अगेन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन. द थर्ड वन इज अ डायरेक्ट डिटेक्शन टेस्ट. तो मेथड फॉर डिटेक्शन ऑफ एंटीजन एंड न्यूक्लिक एसिड आर अवेलेबल. मेथड उसके डिटेक्शन के लिए क्या डिटेक्ट करना पड़ेगा? जरूरी है कि जो न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस RNA और DNA के फॉर्म में है तो कौन सा डिटेक्ट हो पाएगा, मीन्स कि कौन सा लेवल का है, वो RNA लेवल का है कि DNA लेवल का है, कौन सा स्ट्रैंड है, कौन सा स्ट्रैंड नहीं है. उसके रीजन बिहाइंड डायरेक्ट डिटेक्शन टेस्ट हम फाइंड आउट करते हैं. प्रिवेंशन ऑफ द एब्रोवायरस इन्फेक्शन. तो कौन कौन से प्रिवेंशन है? तो सर्वाइवलेंस ऑफ डिसीज, वेक्टर पॉपुलेशन जो भी सर्वाइवल हो रहे हैं, जो भी रिसर्वियस जो होस्ट है उसको वो वेक्टर को हमें स्प्रेस करना है. कंट्रोल ऑफ द वेक्टर, वेक्टर को कंट्रोल करना है, जो भी ट्रांसमिट कर रहा है उसको कंट्रोल करना है.
पेस्टिसाइड्स, एलिमिनेशन ऑफ द ब्रीडिंग ग्राउंड्स, मीन्स कि जो भी ब्रीड कर रहा है, मीन्स कि ब्रीड करना है, वो जो ब्रीड है जो ग्राउंड लेवल की, उसको एलिमिनेट करना है। जैसा कि प्लेग हुआ था, तो प्लेग के कारण क्या क्या डिफॉर्मिटी हो रहा था, तो रेड को सभी वहां से वो किल कर रही थी। पर्सन प्रोटेक्शन, स्क्रीनिंग ऑफ द हाउसेस, बेड नेट्स, इंसेक्ट रिपेलेंट, वो सब पर्सनल प्रोटेक्शन है। व्हेन पॉसिबल वेयर द प्रोटेक्टिव क्लोथिंग while the outdoor. Vaccination available for a number of the arboviral infections, example yellow fever, Japanese encephalitis, Russian tick-borne encephalitis, वो vaccination form में काम करता है। ट्रीटमेंट ऑफ द एब्रोवायरस इन्फेक्शन, तो नो स्पेसिफिक थेरापीज अवेलेबल, बिकॉज क्यों, इसका रीजन क्या है, तो स्पेसिफिक थेरापी नहीं है, क्योंकि स्पेसिफिक थेरापी है लेकिन जो जो टाइप ऑफ इन्फेक्शन लगेगा उसी टाइप का हम वैक्सीन और द इंटरप्रेट स्टार्ट करेंगे। दैट इज द रीजन बिहाइंड नो स्पेसिफिक थेरापी इज दैट Arbovirus encephalitis treated with the hospitalization, intravenous fluid, respiratory support, prevention of the secondary infections and the good nursing care, ये सभी क्या है ट्रीटमेंट ऑफ द एर्बोवायरस इन्फेक्शन, जो सिंपल है। हमारे यहाँ पे एर्बोवायरस का क्लासिफिकेशन और जो भी मॉस्किटोज था हमारा कंप्लीट हुआ स्टूडेंट। नाउ हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, दूसरा टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जो हम आगे के वीडियो में देख रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर starting amoebiasis, that is a parasitological appearance, parasitological observation। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा वायरस पूरा कंप्लीट हो गया, वीडियोलॉजी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पैरासाइटोलॉजी। जो पैरासाइटोलॉजी है, जो हमें आपको पता ही है कौन कौन से स्पीसीज हमें स्टडी करना है, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक है, कौन कौन से डिसीज फॉर्म है। तो पैरासाइटोलॉजी की सबसे फर्स्ट है अमीबियासिस, हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे अमीबियासिस। तो व्हाट इज द रिस्पांसिबल ऑफ द अमीबियासिस? तो अमीबियासिस इज एन इन्फेक्शन विद द इंटेस्टिनल प्रोटोजोआ एंटेनोबिया हिस्टोलाइका। तो अमीबियासिस इन्फेक्शंस विद द इंटेस्टिनल प्रोटोजोआ, जो प्रोटोजोअल ट्रांसमिशन डिसऑर्डर्स है उसको क्या बोलते हैं हम? स्टडी ऑफ द पैरासाइटोलॉजी। उसकी स्पीसीज कौन सी? अमीबिया की, तो एंटामोबिया हिस्टोलाइका, जो सबसे ज्यादा इन्फेक्शन कॉज करती है, उसकी स्पीसीज नेम है अमीबियासिस, दैट इज अ जीनस नेम, एंड एंटामोबिया हिस्टोलाइका दैट इज अ स्पीसीज नेम हु कॉज द डिसीज। बहुत सारी उसमें स्पीसीज हमें देखने को मिली है, लेकिन उसमें से एंटामोबिया हिस्टोलाइका दैट इज अ मेजर स्पीसीज टू आइडेंटिफाई द ट्रांसमिशन ऑफ द अमीबिया टाइप ऑफ इन्फेक्शन। अबाउट द 90% ऑफ द इन्फेक्शंस आर द असिम्प्टोमेटिक, मींस कि 90% इन्फेक्शंस क्या है अमीबियासिस के? अनआइडेंटिफाइड, सिम्प्टोमेटिक फॉर्म नहीं है, लेकिन रिमेनिंग 10% प्रोड्यूस अ स्पेक्ट्रम ऑफ द क्लिनिकल सिम्टम्स, मींस कि ओनली द 10% आर प्रोड्यूस स्पेक्ट्रम, मींस कि वो क्लिनिकल सिम्टम्स को प्रोड्यूस करने के लिए इनफ है, जैसे कि रेंजिंग फ्रॉम असिम्प्टोमेटिक और टू डिसेंट्री टू एब्सेसिस टू द लीवर और अदर ऑर्गन, मींस कि रेंज क्या कर रहा है कि इन्फेक्शन तो स्प्रेड कर रहा है, बट किस कौन सा टाइप का इन्फेक्शन स्प्रेड करे? तो पहले तो असिम्प्टोमेटिक है, फिर डिसेंट्री कर रहा है, डिसेंट्री से लेके एब्सेसिस टू द लीवर एंड अदर ऑर्गन। एब्सेस करना मींस कि बहुत नेक्रोस्ड फॉर्म होगा, टिश्यू डेंजर होना, टिश्यू डिग्रेड होना, टिश्यू डाइड होना, नॉन रिवर्सिबल टाइप ऑफ सेल इंजरी जो कभी भी रिवर्ट बैक होके ग्रो नहीं हो सकती, द टाइप ऑफ द इफेक्टिविटी दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? नेक्रोस्ड, जिसमें आता है एब्सेस। एजेंट कौन सा है? तो एंटोमोबिया हिस्टोलाइका, जैसे कि ट्रोफोजोइट, उसकी साइज क्या है? तो 10 to 60 माइक्रोमीटर इन डी, इट मींस की डायमीटर। साइटोप्लाज्म क्या है? तो आउटर क्लियर एक्टोप्लाज्म, इनर ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्म, एंड द फूड वैक्यूल्स विद आरबीसी, ल्यूकोसाइट्स एंड टिश्यू डेब्रिस, मींस की उसका ट्रोफोजोइट्स एजेंट्स, हम एंटोमोबिया हिस्टोलाइटिक एजेंट्स है जो ट्रांसमिट करने में हेल्प कर रहा है, तो उसका है ट्रोफोजोइट्स। क्या है ट्रोफोजोइट्स? दैट इज आइडेंटिफिकेशन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। तो उसकी साइज क्या है स्टूडेंट्स? उसकी साइज है 10 to 60 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। साइटोप्लाज्म किससे बना है उसका? तो आउटर क्लियर एक्टोप्लाज्म, दैट इज द आउटर क्लियर एक्टोप्लाज्म, and inner granular endoplasm, there is a granulated form is observed here, that is किससे बना है? तो एंडोप्लाज्म, जो अंदर से काम करता हो, इंटरनल एस्टेब्लिशमेंट, that is called as what? Inner granular endoplasm. The third one is the food vacuoles with the RBCs, leukocytes and the tissue debris, जो food vacuoles को और RBC और leukocytes के डेड सेल को वो debris को engulf करता है। Motile by the pseudopodial extension, what is called as the pseudopodial extension? means ki pseudo means ki wrong,
एंड द पोडियल मीन्स की जो कर्वेचर बनाता है, जो वैक्यूल्स फॉर्म करता है, जैसे कि रोंग लेग बनाना, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट इज सूडोपोडियल। पोर्ट्स बनाना मीन्स की राउंडिंग अपीयरेंस, वहां से बल्ज करना और फिर फ्लेक्सिबिलिटी फॉर्म के जैसा वो जैसे था वैसा हो जाना, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट इज सूडोपोडियल एक्सटेंशन। बिकॉज वो अमीबिया की ही स्पीसीज है, इसीलिए अमीबिया टाइप ऑफ अपीयरेंस इज ऑब्जर्व। Nucleus with the central karyosome surrounded by the delicate membrane lined with the chromatin granules। मीन्स की जो मोटाइल है वो सूडोपोडियल एक्सटेंशन के कारण हुआ है। न्यूक्लियस विद द सेंट्रल कैरियोसोम्स सराउंडेड बाय द डेलिकेट मेम्ब्रेन, जो डेलिकेट मेम्ब्रेन से बना है, एंड लाइंड विद द क्रोमेटिन ग्रेन्यूल, जो किससे बना है, लाइंड विद द क्रोमेटिन ग्रेन्यूल से। एजेंट क्या है तो एंटामोबिया हिस्टोलाइटिका, प्रीसिस्ट एंड द सिस्ट। फर्स्ट वन प्रीसिस्ट। प्रीसिस्ट कैसे बनती है, तो सी दैट इज द हिस्टोलाइटिका का एजेंट जो डबल डबल पोर्शन बन रहा है। तो देखते हैं इसमें प्रीसिस्ट इंटरमीडिएट फॉर्म, उसका इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट फॉर्म जो इंटरमीडिएट होने के बाद पोर्स बना है। ओवल विथ ब्लंट सूडोपोडिया, ब्लंट मींस की ब्लंट हो रहा है, मींस की सरफेस एकदम जैसा ब्लंट है, सिंपल एकदम ब्लंट। ओवल विथ द ब्लंट सूडोपोडिया एंड नो फूड वैक्यूल्स, जो ये प्रीसिस्ट है कोई फूड वैक्यूल्स बनाता नहीं है। The second one is a cyst. What is called as a cyst? तो spherical 10 to 15 micrometer in diameter जो cyst बनाता है। प्री cyst के बाद cyst बनाएगा, तो वो cyst कितना spherical में होगा, तो 10 to 15 micrometer in diameter। Uninucleated, later bi or quadrinucleated। Uni means ki only the one nucleated form, then after it will be स्टार्टेड मीन्स की डबलिंग फॉर्म स्टार्ट करेगा, जितने न्यूक्लियस बनेंगे उतने ही डबलिंग पोर्शन उसके बनेंगे, क्योंकि वो सेल डिवाइड हो रहा है। तो वो बेटर जाके बाई और द क्वाड्री न्यूक्लियोप्लेट बनेगा, सॉरी। देन अ थिक चिटेनियस सेल वॉल, दैट इज अ सेल वॉल, उसके क्या है, चिटेनियस मीन्स की चिटेनियस का मीनिंग क्या है, स्पेसिफिक प्रोटीन सीक्वेंस से बना हुआ उसका कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, अ थिक चिटेनियस वॉल। ग्लाइकोजन मासिस नॉट इन क्वांटिटेटेड न्यूक्लिएटेड, मीन्स की ग्लाइकोजन मासिस से बना हुआ है और जो क्वांटिटेटेड न्यूक्लिएटेड में नहीं होता, मीन्स की नॉट ऑब्जॉर्ब इनटू द क्वांटिटेट, मीन्स की बाई से ट्राई से ज्यादा जो न्यूक्लिएटेड फॉर्म बनता है तो उसमें वो फिर ग्लाइकोजन मासिस ऑब्जॉर्ब नहीं होता। फर्स्ट जो एक्सिस्टेड होके जो सेल डिवाइड होता है, जो वही सेल में ग्लाइकोजन के मासिस में सप्लाई होने के बाद वो डबल हो रहा है। क्रोमेटियल और द क्रोमेटोइड पार्ट्स, मींस की क्रोमेटोइड सब्सटेंस जो है, दैट इज अ प्रोटीन मटेरियलिस्टिक, प्रोटीन मेटेलिस्टिक ऑब्जर्व, जो क्रोमेटोइड पार्ट्स में कन्वर्ट हो रहा है, मींस की क्रोमेटोइड्स मींस की स्पेसिफिक प्रोटीन मटेरियल्स की जो न्यूक्लिक एसिड का काम कर रहा है यहाँ पे। मैग्नीट्यूड, द वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है उसका, तो थर्ड मोस्ट कॉमन पैरासाइटिक डेथ की, जो थर्ड मोस्ट कॉमन है पैरासाइटिक डेथ के कारण उसका रेशियो हम देख रहे हैं। इंडिया, चाइना, अफ्रीका, साउथ अमेरिका। प्रिवेलेंस फैक्टर उसमें सॉरी इंडिया, चाइना, अफ्रीका और साउथ अमेरिका में सबसे ज्यादा देखने को मिला है। 2 to 60% ऑफ द प्रिवेलेंस, उसका प्रिवेलेंस कितना है, 2 to 60%। 100,000 डेथ इज पर ईयर, कितना डेथ इज देखने को मिला है, तो 100,000 डेथ पर ईयर। 500 million infections are observed and 50 million cases are observed in India। तो 15% प्रिवेलेंस आर ऑब्जर्व, वेरिएशन अकॉर्डिंग टू द सैनिटाइजेशन, वेरिएशन जो अकॉर्डिंग हम वेरिएशंस कर रहे हैं वो कब हम स्टॉप कर सकते हैं स्टूडेंट्स, कि जो भी 3.6 to 47.4, दैट इज अ वेरिएशन अकॉर्डिंग टू द सैनिटाइजेशन फॉर्म। इंपॉर्टेंट फैक्टर सैनिटाइजेशन मींस की इरेडिकेट करना, इतना ही हम इरेडिकेट कर पाए, अभी तक पूरा इरेडिकेट नहीं कर पाए। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है उसका, तो सोर्सेज ऑफ द इन्फेक्शन इज अ केस और द कैरियर इज द 1.5 into 10⁷ cyst per day। तो सोर्स इन्फेक्शन करने के लिए अमीबिया, जो भी टाइप ऑफ स्पीसीज हम पढ़ रहे हैं, एंटामोबिया स्पीसीज में सिस्ट कितने बनेंगे, तो इतने जब सिस्ट बनेंगे पर डे में, तब वो इन्फेक्शन को स्प्रेड और कैरियर करने में हेल्प करता है। रिसर्वियर्स इज ओनली द ह्यूमन, रिसर्वियर्स ओनली कौन है, ह्यूमन है। सेवरल ईयर्स, और कितने टाइम तक रहता है, सेवरल ईयर्स तक रहता है। रेजिस्टेंट टू क्लोरीन इन नॉर्मल कंसंट्रेशन, जो क्लोरीन के नॉर्मल कंसंट्रेशन में वो रेजिस्ट करता है। रेडिली किल्ड बाय फ्रीजिंग और हीटिंग, जो किल्ड कर रहा है फ्रीजिंग और हीटिंग में बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करता है 55% डिग्री में। लाइफ साइकिल क्या है, तो ये हमें समझना है स्टूडेंट्स की, जो भी मैच्योर सिस्ट है वो इंजेस्ट होगा फूड बॉर्न डिसीज से सबसे ज्यादा और वाटर बॉर्न डिसीज से बिकॉज ऑफ द अमीबियल फॉर्म।
जो फूड बॉर्न डिसऑर्डर सबसे ज्यादा है, वो कहाँ से जाएगा, तो इंजेस्टेड फ्रॉम टू द माउथ एंड देन गो टू द रेस्पिरेटरी ट्रैक, टू सॉरी गो टू द जीआई ट्रैक। वो जो एक्सक्रीशंस हो रहा है, एक्साइलेशंस मींस कि जहां वो कॉलोनाइज होगा वहां सबसे ज्यादा वो अपना क्या कराएगा, न्यूक्लियर पोर्शन बनाएगा, फिर ट्रोफोजोइट्स बनाएगा। ट्रोफोजोइट्स बनाना मींस कि बर्ड्स बना के डबल न्यूक्लियर सेल इसमें इन्वेट करना, मल्टीप्लीकेशन करना। देख रहे हैं आप यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, सिस्ट बनाने के बाद मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट हुआ, सिस्ट फिर कस में स्टार्ट हुआ कि डबलिंग प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद जो अम्बियकल फॉर्म जो भी है वो डबल डबल स्टार्ट हो रहा है। एंड द एनस, जो एनस के द्वारा जो सिक्रीट हो रहा है फीकस, तो वो भी फीसिस मटेरियल के द्वारा भी वो ट्रांसमिट अनदर द्वारा हो सकता है। दैट इज अ फीको ओरल रूट ट्रांसमिशन भी हम कह सकते हैं। होस्ट क्या है, तो ऑल एज ग्रुप आर अफेक्टेड, मींस कि कोई भी एज ग्रुप है वो अफेक्ट हो सकते हैं। नो जेंडर और रेशियल डिफरेंशिएशन, मींस कि कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई रेशियल मींस कि कोई स्पेसिफिक इम्यूनिटिकल सब्सटेंस उसमें डिफरेंस नहीं हो रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल कम्युनिटी लिविंग एमएसएम, मींस कि कोई भी प्रकार का लिविंग एमएसएम नहीं है, मस्कुलर सिंड्रोम मस्कुलर पे थी, इंस्टीट्यूशंस फॉर्म नहीं हो रहा है, कम्युनिटिकल फॉर्म नहीं हो रहा है। Then severe if the children old or pregnant or the PEM factor is there, प्लाज्मा जो भी पीएम है, जो भी प्रोटीन, जो भी कॉजिंग फैक्टर जो कम हो रहा है उसका रीजन है। डेवलप्स एंटीबॉडीज इन टिश्यू इन्वेशंस की, जो कहाँ पे हो रहा है एंटीबॉडी कि जो टिश्यू के साथ होके इन्वेड हो रहा है। एनवायरमेंट फैक्टर क्या है, तो लो सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस के, जहाँ बहुत सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस बहुत लो है, मींस कि वहाँ पे हाइजीननेस बहुत कम है, वहाँ पे होगा। स्टूडेंट्स हमारा टाइम 10 मिनट रिमेनिंग हुआ है, तो आप दूसरी लिंक जो शेयर की गई है आप ओपन कर देना। पुअर सैनिटाइजेशन, सुएज कंटामिनेशन, जो भी सैनिटाइजेशन प्रोसेस हो रहा है प्रॉपर नहीं हो रहा है, प्रॉपर नहीं है, पुअर है। सुएज कंटामिनेशन मींस के जो सुएजेटिक मटेरियलिस्टिक है, ड्रेनेज मटेरियलिस्टिक है, कंटामिनेशन होगा। नाइट सॉइल फॉर द एग्रीकल्चर, मींस की जो सॉइल नाइट सॉइल है, जो रात की जो भी सॉइल है, नाइट सॉइल फॉर द एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की जो सॉइल है वहां से रिप्रेजेंट। सॉइल इज अ मेजर सोर्स ऑफ एनी टाइप ऑफ द इन्फेक्शन, स्टूडेंट्स याद रखना। एंड सीजनल वेरिएशन, सीजन के दौरान में अलग अलग प्रकार के वेरिएशन फाइंड आउट किए गए हैं। इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, तो इंक्यूबेशन पीरियड 1 to 4 weeks। मोड ऑफ द ट्रांसमिशन, व्हाट आर द मोड ऑफ द ट्रांसमिशन, तो 1 to 4 week ट्रांसमिशन, मोस्टली फीको ओरल रूट, contaminated water and the contaminated food, डायरेक्ट हैंड टू द माउथ, जो contaminated हैंड है उसके साथ वो माउथ में जाके फिर जो हमारी बॉडी में स्प्रेड कर रहा है। एजेंसी ऑफ द फ्लाइज, कॉकरोचेस, रेड्स एक्सेट्रा, जो एजेंसी मीन्स की जो जिसके साथ वो देखने को मिला है, मीन्स की ट्रांसमिशन है, तो कौन कौन से फ्लाइज, कॉकरोचेस एंड रेड्स आर द ट्रांसमिशन फॉर्म। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट ऑफ द वीरियो रेक्टल रूट, मीन्स की जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है, जो सिफिलिस टाइप ऑफ इन्फेक्शन है, एसटीडी टाइप ऑफ डिसऑर्डर है, वो भी उसके साथ भी ट्रांसमिट, जो भी पर्सन इन्फेक्टेड है तो उसके कारण उसके पार्टनर को भी हो सकता है। What are the clinical spectrum? Most important. What is the clinical spectrum is here? So that is a most common type of the amoebic infection is a asymptomatic cyst passage. मीन्स कि जो सिस्ट फॉर्म में होते हैं जब तक वो पास होते हैं तब तक क्या होता है, असिम्प्टोमेटिक है। इंटेस्टिनियल अमीबियासिस, दैट इज एब्डोमिनल क्रैम्प। इंटेस्टिनियल अमीबियासिस मीन्स कि जब जब वो सिस्ट में ट्रांसफर के जो इंजेक्शन होके जो कॉलोनाइज हो रही है, जो इंटेस्टिनल फॉर्म तक वहां के जाके कॉलोनाइज हो रहा है, तो उसका सिम्टम्स क्या है, तो एब्डोमिनल क्रैम्प विद द माइल्ड डायरिया टू द कॉलिटीज एंड द डिसेंट्रीज, मींस की कॉलिटीज मींस की जो भी डिफॉर्मिटीज हो रही है, डिसेंट्री हो रहा है। डिसेंट्री लास्ट टाइम भी मैं बताया था कि बहुत क्रैम्प पेन होके watery type of diarrhea cause होना, that is called as the dysentery. Sometimes the blood materialistic is also absorbed into the dysentery portion. Extraintestinal amoebiasis, that affectivity is amoebiasis to the specific to the liver abscess की जो extra intestinal amoebiasis जो है, intestine extra means कि intestinal portions को amoebial species के साथ वो वहाँ पे colonize करना, तो वो क्या cause कर रहा है, तो amoebic liver abscess। रेयरली लंग्स की, जो लंग्स को रेयरली अफेक्ट कर रहा है। स्किन, जेनेटियल्स एंड द सीएनएस आर द अफेक्टेड। जेनेटियल्स मींस की जो रेस्पिरेटरी सॉरी जो रिप्रोडक्टिव जो एंडोक्राइन रिलेटेड जो भी जितने भी जेनेटियल ऑर्गन्स है उसको डिफेक्ट कर रहा है और सीएनएस को अफेक्ट कर रहा है। अमीबोमिया दैट इज इन्फ्लेमेटरी एंड एडिनोमेटासिस रिएक्शंस अराउंड द ट्रोफोजोइट। जो अमीबियकल फॉर्म है जो क्या कॉज कर रहा है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस इनटू दैट
portions of their affected site and adenometasis reaction around the trophozoite. Adenometasis reaction that is called as a trophozoite means कि double nuclei convert हो रही है और उसके reason भी means कि जो ports बन रहे हैं that is called as what a trophozoites type of the appearance are there. Amoebomia, that is affected regions are colonized into their affected organs, that is called as what amoebomia. So pseudotermal lesions, pseudo means ki wrong termal of the lesions, necrosis, edema and inflammatory thickening of the mucosa and submucosa of the intestinal wall. necrosis form हो रहा है, उसके reason behind जो भी वहाँ पे जाके colonize होगा तो वहाँ पे जाके क्या करेगा necrosis factor. necrosis means ki permanent tissue damage. The second one is the edema, that is a swelling conditions is that is called as edema, and inflammatory thickening of the mucosa. Inflammatory cause करेगा mucosal form cell wall को thick कर देगा mucosa and submucosa of the intestinal wall. जो submucosal layer है उसके साथ वाला जो intestinal wall को damage करेगा. Right students, कि जो gastric system को disturb कर रहा है. 1% of the cases are observed. यहाँ पे ये टाइप का 1% केस ओनली यहाँ पे आइडेंटिफाइड हुआ है. palpable masses with trophozoites. palpable means की जो palpable conditions means की जो उभर आना. palpable masses with the trophozoites के जो जहाँ पे डेवलप हो रहे न्यूक्लियाई वो बनते हैं, सिस्ट बनते हैं, उसमें वो डबल पोर्शंस वहाँ पे अपीयर्ड होते हैं. always coexist with the ulcerations. वो क्या coexist करता है? always ulcerations means कि ulcer form observed कर रहा है pH imbalance के कारण और infection बढ़ने के कारण. single, rarely, multiple in different part of the colon. single है और rarely multiple different part of the colon में कर रहा है. on the skin at the site of the airway aspirations. अब देखते हैं microscopical appearances. स्टूडेंट्स तो different between a amoebiatic and bacillary dysentery. जो bacillary dysentery cause कर रहा है और amoebiatic है तो इसमें क्या different है? तो characteristic हम देखते हैं, नंबर देखते हैं और bacillary और amoebiatic difference देखते हैं. नंबर इस क्या है, अमाउंट क्या है, तो उसका 6 to 8 motions per day. motion में 6 to 8 times diuretic conditions is observed here. copious and the bacillary में क्या होता है, greater than 10 motions per day. amount copious and the small. copious means कि बहुत large portion में होता है और bacillary में very small. order क्या है, offensive means कि बहुत ज्यादा खराब smell. bad smell that is called as what offensive, किसमें amoebia type of the infection में. and bacillary dysentery that is the orderless means कि उसमें कोई भी smelling condition नहीं होती है. characteristic color क्या है, तो amoebiatic में dark red color का appearance होगा और bacillary dysentery में bright red color का. reactions क्या है, तो उसका तो amoebiasis dysentery cause for the acidic and the bacillary dysentery cause for the alkaline condition. consistency क्या है, amoebiatic dysentery non adherent and the bacillus dysentery means की adherent. adherent का मीनिंग क्या है, उसके साथ blunt हो जाना और effectivity ज्यादा बताना. तो amoebiatic dysentery क्या है, adherent नहीं है, मींस कि affected है लेकिन वो उसके mucosal form के साथ binded नहीं है. लेकिन bacillary dysentery क्या adherent है. RBCs amoebiasis में in clumps and bacillus में discrete और the Rolex means की RBCs की जो है जिसमें जो डिफरेंस बिटवीन अमीबियाटिक एंड बेसिलरी कंटिन्यूड माइक्रोस्कोपी में अपीयरेंस क्या देख रहे हैं, तो वो क्लम्पिंग में देखते हैं और रोलेक्स मींस की एक प्रॉपर वे में हमें एक ही टाइप का लेटेंट पैटर्न हमें दिखता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट अ डिस्क्रीट और रोलेक्स पैटर्न. फर्स्ट सेल्स आर फ्यू एंड द बेसिलरी डिसेंट्री में क्या देखने को मिलता है, न्यूमरस मींस की सबसे ज्यादा. मैक्रोफेज इज फ्यू एंड द बेसिलरी डिसेंट्री में न्यूमरस. many have RBCs and may mimic of the EH. eosinophil present and the bacillary scats means की बहुत कम. charcoal layered crystals present and bacillary में absent. cyanosis bodies, kyphotic bodies that is called as what a present and absent means की जो wrong type of body का appearance हुआ है that is called as kyphotic present. kyphotic bodies are present. ghost cell that is absent and the bacillary form is present. some type of reasons वो appear होगा उसके बाद वो appear नहीं होगा. पैरासाइट्स अमीबियाटिक डिसेंट्री में ट्रोपोजोइट्स के फॉर्म में होगा और बेसिलरी डिसेंट्री में एब्सेंट होगा. बैक्टीरिया कैरेक्टरिस्टिक मेनी मोटाइल बैक्टीरिया एंड फ्यू आर द एब्सेंट. की जो मोटाइल है बैक्टीरिया और सब में फ्यू में एब्सेंट है. अमीबियाटिक लिवर एब्सेस. लिवर एब्सेस में क्या होगा, मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा इंटेस्टिनियल प्रेजेंटेशंस में क्या ऑब्जर्व होगा, देखते हैं स्टूडेंट्स के जो पैरासाइटिकल रीचेस लीवर टू द पोर्टल सिस्टम. पोर्टल सिस्टम के साथ वो जहाँ जाके रीच होगा
occurs within a 5 months of the dysentery in the 95% of the cases. 95% of cases में क्या होगा, after the 5 month of the 5 month just did not dysentery cause or due to of the amoebiatic type of the liver abscesses condition, but concomitant of active diarrhea is observed is less than in a third of the cases. means कि जो concomitant active जो diarrhea है वो every third cases में देखने को मिला है. Pain and the point tenderness over the night, hypochondrium and the fever are the observed. Pain और point tenderness means कि जो point है specific वो point पे tenderness दिखा overnight, overnight hypochondrial. हाइपो मीन्स की बहुत ज्यादा, कॉन्ड्रियल सिचुएशन मीन्स की फ्लूइडिटी का वहां पे अक्यूमुलेशन होना, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, हाइपोकॉन्ड्रियम एंड द फीवर आर ऑब्जर्व. ऑब्वियसली हमारी बॉडी में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसकी अफेक्टिविटी जब स्टार्ट होती है तो सबसे पहले क्या कॉज होता है, फीवर. जॉन्डिस इज द रेयर एंड द प्लूरल इफ्यूजन इज द कॉमन, बिकॉज वो लीवर के साइड को अफेक्ट कर रहा है. तो जब लीवर के साइड को अफेक्ट करेगा तो जॉन्डिस अपीयरेंस होगा, स्वेलिंग होगा वहां पे, inflammation or edema condition observed. Pleural effusion is the common. Older patients from endemic areas usually have a chronic disease, means कि जो older patients है उनको recovery portions कम है, तो regional behind areas usually क्या है, chronic disease caused होगा वहां पे. Right lobe is commonly affected and the abscess of the left lobe is more dangerous. Right lobe जो commonly affect हो रहा है और abscess is बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, left lobe में is more dangerous due to its proximity to the heart, then rupture the heart cells and the pericardial effusions is there. अगर right lobe affected होगा और abscesses conditions occur होगा